Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 7 correlation को डिस्कस कर रहे थे और लेक्चर नंबर 9 है तो टॉपिक इज द कोडिंग लीनियर correlation coefficient formula 7. So in this lecture students I will discuss the coding formula for linear correlation coefficient formula 7. तो students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. Let's start the topic the coding formula for linear correlation coefficient formula 7. In the contents of this lecture, first point students, I will discuss the coding linear correlation coefficient formula 7. In the second point students, I will discuss the exercise question 7.9 and calculate the value of the correlation coefficient using formula 7. Now students, first of all, I will discuss the brief introduction about the coding linear correlation coefficient formula 7. In the coding technique, the correlation coefficient R is independent of origin and scale. This means that if we make the transformation U equals to x minus a over h and b equal to y minus b over k in x and y values respectively, where a and b are any constants and h and k are the fixed intervals. तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे u में और v में, x वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेंगे u में और y वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेंगे v में, और x वैल्यूज में से हम लोग डेविएट करेंगे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू a और डिवाइड कर देंगे इंटरवल h पे, और देन सिमिलरली हम लोग जो है वो y वैल्यूज को कांस्टेंट b से डेविएट करेंगे और देन इसको k इंटरवल पे डिवाइड कर देंगे. इन दिस वे मेरी वैल्यूज जो है वो आपके पास काफ़ी मिनिमाइज हो जाएंगी और इसको हम लोग जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ u एंड v, और देन फिर हम लोग इसको यूज करेंगे अपने फॉर्मूला 7 के अंदर और कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू को. तो स्टूडेंट्स व्हेन हमारे पास जो है वैल्यूज काफ़ी सारा x y वैल्यूज जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं, तो इन दिस सिचुएशन वी यूज द कोडिंग फार्मूला. The correlation coefficient R is given by Ryx equal to n summation u v minus sin summation u into summation v, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के साथ n summation u square minus sin summation u का होल स्क्वायर एंड विद प्रोडक्ट साइन n summation v square minus summation v का होल स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू फार्मूला 4 स्टूडेंट्स मैंने राइट किया है इस फार्मूला 7 को, इसको हम लोग यूज करेंगे. दिस इज द कोडिंग फार्मूला टू कैलकुलेट द correlation coefficient. Now in the second point, I will discuss the exercise question 7.9 and calculate the value of R using the coding formula 7. In the statement of exercise question 7.9, calculate the correlation coefficient for the following data on supply X and demand Y. So students, two variables का data हमें given है. Supply X are 400, 200, 700, 100, 500, 300 and 600, और इसके corresponding हमारे पास डिमांड y वैल्यूज हैं 50, 60, 20, 70, 40, 30 and 10. और students is in this situation we use the coding formula for linear correlation for calculating the linear correlation coefficient, where the values of x and y are the large, so we have to calculate the correlation coefficient using formula 7, and formula 7 is n summation u v minus summation u into summation v, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स के रूट के साथ n summation u square minus summation u का होल स्क्वायर विद प्रोडक्ट साइन n summation v square minus summation v का होल स्क्वायर. तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इजीली जो है कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू को, और इससे हमारी वैल्यूज जो है x y वैल्यूज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मिनिमाइज हो जाएंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन u and v. First of all, I will write the given information of xy values in columns, then I will transform the x values in the new variable u and y values in a new variable v. तो स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे कांस्टेंट a और फिक्स इंटरवल h को और अपने x वैल्यूज के अंदर. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कांस्टेंट a जो है वो 400 सेलेक्ट किया है और इंटरवल जो है मैं यूज करूंगा यहाँ पे 100 को, और देन फिर मैं प्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे न्यू वेरिएबल को प्रिपेयर करूंगा u को विच इज x माइनस a ओवर h. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने अपनी फर्स्ट वैल्यू x को 400 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है. कांस्टेंट जो आपने सेलेक्ट किया है 400 और इंटरवल जो डिसाइड किया है 400, इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0. इसको राइट करूंगा u के कॉलम में. देन नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास 200 है, 200 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 400 से विच इज -2 और डिवाइड करूँ विच इज -200 एंड इसको डिवाइड करूंगा 100 पे, तो आंसर इज -2. नेक्स्ट वैल्यू 700 है, 700 माइनस 400 300 माइनस, और देन फिर इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 3. सिमिलरली आपने वन बाय वन ईच वैल्यू ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करना है कांस्टेंट a 400 से और 100 पे डिवाइड करना है, और इसके आंसर्स को मैं u के कॉलम में राइट करूंगा और समेशन u जो है इसको कैलकुलेट करूंगा. तो सम ऑफ u जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0 है. देन मैं प्रिपेयर करूंगा कॉलम ऑफ v. v is a new variable that is a transformation of the y values v equal to y minus b over k.
तो स्टूडेंट्स मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे बी कांस्टेंट को, और बी कांस्टेंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक मिडल वैल्यू को चूज करूंगा विच इज 40। इस डेटा सेट में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे y वेरिएबल के अंदर 10 है, और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 70 है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे कांस्टेंट a जो है कांस्टेंट b को चूज किया है मिडल वैल्यू एज अ 40। और इंटरवल जो है वो हमने डिसाइड किया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 के इंटरवल को डिसाइड किया है विच इज k। और देन फिर ईच वैल्यू ऑफ y को सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट b 40 से, और देन डिवाइड करेंगे 10 पे। तो 50 माइनस 40 विच इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज 1। इसको राइट करेंगे v के कॉलम में 60 माइनस 40 विच इज 20, 20 डिवाइड बाय 10 आंसर इज 2। और देन फिर आपके पास थर्ड वैल्यू 20 है y की, इसको माइनस करेंगे 40 से और डिवाइड करेंगे 10 पे, आंसर इज -2। देन वन बाय वन आपने तमाम वैल्यूज को y की वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है कांस्टेंट b से, और डिवाइड करना है इंटरवल k पे। देन फिर स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे सम v को, सम v 0। In the next column students I have to prepare the product of the u and v, और u और v में दोनों कॉलम्स को जो है उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास u की 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर है 0, -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू -2 -6, -3 इंटू -3 -9, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आंसर इज -6। और इसका सम कैलकुलेट करेंगे, समेशन u v इक्वल टू -24। In the next column students I have to prepare the square of the u column, और u values का स्केयर u स्केयर होगा, और u वैल्यूज जो है वो आपके पास यहाँ पे कॉलम में गिवन है। 0 का स्केयर 0, -2 का स्केयर 4, -3 का स्केयर 9, -3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1 एंड 2 का स्केयर 4। इसका सम जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, समेशन u स्केयर, और देन फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है v स्केयर। v स्केयर में ईच वैल्यू ऑफ v को हमने इसका स्केयर लेंगे और देन फिर इसका सम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास v की वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू v की 1 है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, -2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 0 का स्केयर 0, -1 का स्केयर 1 एंड -3 का स्केयर 9। देन फिर स्टूडेंट्स आपने इस कॉलम को v के स्केयर के कॉलम को ऐड करना है, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 28। इन दिस वे स्टूडेंट्स आपने अपनी एक्स वाई वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म किया u और v वेरिएबल के अंदर, और देन फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है अपने इन कॉलम्स को प्रिपेयर किया प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, u स्केयर एंड v स्केयर को। देन फिर उसके सम्स को कैलकुलेट किया, और इसको हम लोग यूज करेंगे अपने फार्मूलाज में फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ r। We know that the coding formula for linear collision coefficient is Ryx equal to n summation uv minus summation u into summation v, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यूज करेंगे विद स्क्वायर रूट के साथ, n summation u स्क्वायर माइनस summation u का होल स्क्वायर इनटू n summation v स्क्वायर माइनस summation v का होल स्क्वायर विच इज द फार्मूला 7। और राइट साइड पे अगेन स्टूडेंट्स मैंने इनके सम्स को राइट कर दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 7 है, summation u and summation v which is always equal to 0, and product of u and v is equals to -24, and the value of the summation u square and summation v square equal to 28। इन सम्स को स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे अपने फार्मूला 7 कोडिंग फार्मूला में, और कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स n की जगह पे यूज करेंगे 7, और समेशन u v का आंसर हमारे पास -24 है। समेशन u एंड समेशन v इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दें, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यूज करेंगे n इक्वल टू 7, समेशन v u स्क्वायर इक्वल टू 28 है। 28 को पुट कर देंगे, समेशन u 0, 0 का स्क्वायर 0, और n 7 और 28, अगेन समेशन v स्क्वायर की वैल्यू 28 पुट करेंगे, और समेशन v आपके पास अगेन 0 है, और 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो स्टूडेंट्स देन आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की टर्म्स को सॉल्व करना है, और न्यूमरेटर में आपके पास जो आंसर है -168, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट्स करेंगे दोनों का, और 196 है फर्स्ट टर्म का आंसर, और सेकंड टर्म का आंसर इज आल्सो 196। तो 196 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा, रिमेनिंग आंसर इज 196। डिवाइड करेंगे 168 को 196 पे, तो आपके पास फाइनल आंसर कोलिशन कोफिशिएंट का -0.857 है। इट मींस दैट कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, और नेगेटिव कोरिलेशन मींस दैट कि आपके पास दोनों वेरिएबल्स की जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू को यूजिंग द फॉर्मूला कोडिंग फार्मूला 7 को फॉर लीनियर कोलिशन कोफिशिएंट।
In this lecture, a coding formula for linear correlation coefficient has been introduced और इसमें हमने अपने वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म किया इन न्यू वेरिएबल u एंड v में और कैलकुलेट किया एक एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर हमने r की वैल्यू को और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अपना फीडबैक जरूर दें ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ थैंक यू